I'm serious. I'm seriously scared. I hope that Gambit plays off. Serious. That was tone which was very. It was all inside. Thank you, everyone. Why are you writing this? So that's because everyone is black and you're white. That's why. Come here. Michael Jackson. Get it? I think I'll just get Nietzsche, it's fine. No, don't be in the corner. Who's not in the corner? Come here. Yeah. I should get some. हमने सब कुछ पढ़ा। Because एक Let's side start. let's do a yay! I hope you guys like the episode. और गाने वाले को But Virat is missing. Oh yeah. Virat He's always late. Flash for Virat. He's always missing. He gets a call. He says, "I'm getting there. Bombay traffic and all वो that." मिलेंगे अगले एपिसोड में देखिएगा जरूर. Alright guys, thank you. Fashionably late. Can we go inside? Thank you. Yes, yes. Who's going to click for me? This lens? Yes, yes. So, sir, first episode was epic. There's so many things that we have seen. Tell us something, how you enjoyed the first episode. Well, my name is Deepak Parajar. I'm playing the role of Mr. Mehta in this web show called Rai Singhani vs. Rai Singhani. It's a fabulous script. I went in to do this role because though my entry was pretty late, but I did enjoy the script. It was very well written, a very well web show, and I'm sure it's going to attract the audiences a lot. Each actor in this web show has performed to their best. I have nothing more to say. I'm very, very happy with the producers, with the directors, cameraman, the staff, recorders. Everybody has been fantastic. So I'm going to wish Rai Singhani versus Rai Singhani all the best. And thank you, Sony Liv, for having us on your show. Thank you so very much, much. Thank you. हाँ पर हम वैलेंटाइंस डे के दिन भी काम करें. No plans. No plans. काम. पहले congratulations शोभित एंड जो लास्ट में धमाका दिया है आपकी तरफ से काफी अमेजिंग लग रहा था. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच. मैं अपने किरदार के बारे में इसीलिए ज़्यादा नहीं बता रही थी ताकि जब आप लोग एपिसोड देखें तो आपको यू नो वो जो सरप्राइज़ था वो आपके लिए सरप्राइज़ ही रहे. बट आई होप यू गाइज लाइक इट. हमने बहुत मेहनत की है, बहुत प्यार से ये एपिसोड बनाया है, पूरा शो बनाया है इनफैक्ट. एंड just आई होप अल्लाह मे इज़ काइंड टू अस एंड इट डज रियली वेल. What would you like to say about the internship देखने वाले, क्योंकि ये वो जो एपिक था लास्ट में एंड हुआ. अब इंटर्नशिप के आगे क्या होने वाला है आपके किरदार से? वेल इंटर्न बन गई है अंकिता, बहुत जल्द ही लॉयर भी बन जाएगी. एंड देन द स्टोरी विल टेक अनदर टर्न. सो आई थिंक अंकिता इज़ दैट वन कैरेक्टर जो स्टोरी टर्न करने आती है हमेशा. जैसे उसने लास्ट एपिसोड में स्टोरी टर्न की, वैसे ही अंकिता है पूरे शो में. बट शी विल ऑलवेज कम टू टर्न द स्टोरी ओवर अगेन and lead it somewhere else. So it's a fun character. And now I'm so overwhelmed. I don't even know what to say. रिजी जो शो का हमने अभी जस्ट देखा है कि आप काफ़ी बड़ा बदला लेने आ रही हैं. क्या होने वाला है कैरेक्टर? क्या जेनिफर के साथ आपकी फाइट दिखाई देगी? Two top actors going to fight on the big screen. That's so sweet. Thank you so much. But yes, बहनें हैं, बहनों के बीच में नोक झोंक तो होती रहती है. And these are half sisters. So let's see how the relationship will take a turn. ये दोनों बहनों के बीच में प्यार बढ़ेगा या फिर नफरत बढ़ेगी, वो देखेंगे हम आने वाले एपिसोड्स में. So please stay tuned.
आपने कितना कुछ सीखा, मतलब कुछ इस कैरेक्टर के लिए एडवोकेट से आप मिले हैं, कोई एडवोकेट से? वेल हमारी राइटिंग टीम, हमारी क्रिएटिव टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है. उन्होंने होमवर्क इतना अच्छा किया है कि हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. टू बी रियली ऑनेस्ट, एंड आवर डायरेक्टर उन्होंने अपना होमवर्क इतने अच्छे से कर लिया कि वही हमें आधी ज़्यादा चीज़ें बताते रहते थे. सो उन्होंने हमारा काम बहुत आसान कर लिया. सो थैंक्स टू द डायरेक्शन टीम, राइटर्स टीम एंड द क्रिएटिव टीम. बाकी सीखने को काफ़ी कुछ मिल रहा है. आई थिंक बाय द एंड ऑफ दिस शो आई विल लर्न अ लॉट फ्रॉम अंकिता, जिसके बारे में मैं अभी नहीं बता सकती, बिकॉज द होल जर्नी ऑफ अंकिता इज़ अबाउट वेदर शी विल बिकम अ बेटर पर्सन और वेदर शी विल गो अहेड एंड सीक रिवेंज. मम्मी जी को काफ़ी प्रॉब्लम है, क्या है, क्या बीमारी है? कुछ अगर आप बता सकें थोड़ा सा. मम्मी जी, सो मम्मी जी को as you guys know now that I am Rajdeep's daughter. So उन्होंने मेरी मम्मा को छोड़ दिया था. So it's a lot, and honestly I can't tell you much about the story. You have to watch tomorrow's episode. आपने आज का देखा है, आप Monday, Tuesday, Wednesday देखेंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा that किसने जो किया वो क्यों किया. So you have to watch all the episodes to understand what the story is. मैम कितने एपिसोड्स आने वाले हैं इसमें, मतलब 100 एपिसोड्स होंगे क्या, ये कुछ अगर आप? वेल इतने एपिसोड्स होंगे कि आपका जो टमी है वो फुल हो जाएगा. आई विल नॉट गिव यू द करेक्ट एग्जैक्ट नंबर, बट इतने एपिसोड्स ज़रूर होंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा. सो स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच गाइस. All of you saw? बचपन से हम आपके फैन कुछ मिस नहीं करा. हमारा हमारा भी बचपन ही था. मैंने फिर जी सोलो कर जाता है विजुअल्स. एक साथ में ले ले. हाँ ले लिया. No, you're not getting any clever. सोलो कर देना है. एक सोलो कर दे. हाँ जी, आप करते हैं. अनुष्का जी आप मैं बाइट हाँ हाँ श्योर. Let's do the bites together, no? Come. पहले एपिसोड की बात करो, आप दोनों ने किल कर दिया. आपने तो सर नेक्स्ट लेवल. टू बी वेरी ऑनेस्ट, टेल अस समथिंग अबाउट द रिस्पॉन्स हैज बीन वेरी ग्रेट. हाउ वी गाइस वांट टू लुक फॉरवर्ड फॉर Rising Ghana versus Rising Ghana. You know, you'll have to wait for that because that's the whole suspense. Yeah, exactly. Because अभी तो पिक्चर शुरू I've हुई been है. almost put to rest, and thereafter she's going to carry the show, and she's going to. And it's a what I mean, he's absolutely, you have killed it, and I think it's because of हमारे शो की जो एनर्जी है ना वो इतनी करेक्ट है. बिकॉज एवरी एक्टर, एवरी कैरेक्टर हैज़ दिस अपना एक फ्लेवर, उनका अपना एक सिग्निफिकेंस है. एंड आई थिंक वी आर ऑल वेरी हैप्पी टुडे कि हमने आज पहली बार सबने साथ में देखा है. सो इट्स जस्ट still kind of sinking in. And I think everybody's done such a fabulous job. Everybody. Our director Anirudh, our DOP Indro, Rochak, everybody. मुझे Superb. ये जो कास्ट नेम है सबसे ज़्यादा अनुष्का, विराट अनुष्का, ये काफ़ी विरुष्का चल रहा है. ये मुझे नहीं पता, इसका जवाब मुझे नहीं पता कि क्यों ये नाम है, ये मुझे नहीं पता. आपको पता है? मेरे बारे में? Singhania, your surname. Yeah. Virushka is also there. Anushka is my daughter, and I think Rajdeep's only lifeline. He loves her deeply, and of course he loves his mom, his brother. But everybody has a place. हर कैरेक्टर की उसके स्पेस में एक दायरा होता है जहाँ वो डांटता है तो डांटता भी है अपनी बेटी को. He doesn't care. और उसे ये पता है कि अनुष्का बहुत इमोशनल है, और एक लॉयर बनने के लिए आई थिंक उसमें वो क्वालिटीज़ नहीं हैं अब, इसलिए वो विराट को शायद आ जाएगी बहुत जल्द आ जाएगी. जेनिफर बेयर्ड की अगर मैं बात करूँ, we have seen that side. Now this side we are going to explore more into that. How you are seeing into this side of? I know it's just I mean it's काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस होती है जब आपसे, तो
it's a great thing, but it's also very nerve-wracking at the same time. But I always try and choose characters that are different from each other, so that I also grow as an actor. I also learn something. तो ये जो अभी जर्नी शुरू हो रही है अनुष्का की, शी इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर येट वेरी सिंपल एट हार्ट. एंड वो कैप्चर करना है, वो सही बैलेंस लाना कोशिश कर रही हूँ मैं भी. अब वो आप बताएंगे कि माया के बाद अभी अनुष्का क्या करेगी. मैम कोड एम की हम बात अरे करते यार. हैं, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपने एक सच्चाई कुछ दिखाई जी. सोसाइटी की. यहाँ पर हम एडवोकेट की क्या सच्चाई दिखाने वाले हैं यहाँ पर ये सच्चाई, ये एक्चुअली शो एक इंसान भले वो लॉयर हो या जो भी हो, उनके अपने वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स होते हैं. हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी में अलग होता है. तो ये लॉयर तो है, जैसे फ्रॉम एन आर्मी पर्सन हु इज़ वेरी डिसिप्लिन्ड, एंड अनुष्का हियर हू प्लेज अ लॉयर हैज़ हर ओन वैल्यू सिस्टम, बट शी थिंक्स फ्रॉम हर हार्ट. तो ये जो उसका जो सॉफ्टनेस है, उसको अपने वैल्यूज़ के साथ कंबाइन करके एक सीमलेसली इस स्टोरी में फिट करना एक चैलेंज है, बट आई एम रेडी फॉर द चैलेंज. आपने कोई लॉयर से, आपने मतलब कोई एडवोकेट लोगों से आपने बातचीत की है? इंडिया के टॉप लॉयर फर्म हो, DSP हो, A to Z लॉयर फर्म, कई सारे बड़े लॉयर फर्म कोई हुए हैं आप लोग? ना मैं कभी कोर्ट गया हूँ ना मेरा वास्ता पड़ा है. नहीं, मतलब हमने थोड़ी अपनी रिसर्च कर ली है, बट हमारे सेट पर भी काफ़ी सारे लोग हमारे क्रिएटिव्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं इस चीज़ों में, टेक्निकल चीज़ों में. तो रिसर्च वैसी होती है. इनफैक्ट हमारा एक राइटर इज ऑल्सो अ लॉयर. या लिहाज से लिखता है वो. आई एम श्योर टेक्निकली इट्स करेक्ट. करण और आपके बीच में काफ़ी हम देख रहे हैं मतभेद दिखाई दे रहे हैं, और उस पर आप कुछ अगर आप बताना चाहें, मतलब आप यार तुम रुको ना, अभी तो स्टोरी सारी बता दे. इमोशनल आप मतलब एक होता है कि दो एडवोकेट होते हैं जी. आई मीन ऑब्वियसली अगर आपने जैसे फर्स्ट एपिसोड में देखा होगा, उनका एक पास्ट रहा है जो अब आपको धीरे धीरे पता चलेगा. तो अभी वो क्यों है ऐसे, वो जाने के लिए देखिए राय सिंघानी वर्सेस राय सिंघानी, मंडे टू ट्यूसडे वेडनेसडे 8 PM. ओके बाय, थैंक यू. आपके चेहरे को देख के लग रहा है ये कि आपने एंजॉय किया. काफ़ी सारी चीज़ें हैं. राय सिंघानिया वर्सेस राय सिंघानिया, सस्पेंस इज देयर, थ्रिलर इज देयर. हाउ यू हैव एंजॉयड? जब हम देखते बड़े पर्दे में एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है एज एन एक्टर. जब आप देखते हो किस तरह से आप एंजॉय करते हो? देखो मेरे साथ पता है क्या हुआ, मैं पिछले 18 साल से एक ही कैरेक्टर प्ले करती आई हूँ. वो ऐसा ही रहा है और उसका फीडबैक हमेशा ऐसा ही रहा है कि मैं स्क्रीन पे आऊँगी आपको तो स्माइल करना ही है, क्योंकि मैं इतने खुराफाती कैरेक्टर्स करती हूँ. बट यहाँ पे मुझे कुछ और करना था. मुझे ऐसे लगा कि नहीं, दिस इज़ अनदर प्लेटफॉर्म, दिस इज़ फॉर मी वन स्टेप अहेड. सो आई डिड द सेम थिंग, बट मैंने उसको सिर्फ थोड़ा मेलो डाउन कर दिया और अपना एलिमेंट डाला. तो मुझे अच्छा लगता है कि कोई भी प्लेटफॉर्म हो, हर डायरेक्टर मुझे एक अपॉर्चुनिटी देता है इम्प्रोवाइज़ करने के लिए, और वो इम्प्रोवाइजेशन वर्क करती है. स्पेशली इस कॉन्सेप्ट की मैं बात करूँ, इट्स समथिंग न्यू फॉर द yes. ऑडियंस. सोनी लिव पे भी आ रहा है, ये भी एक नई चीज़ है. Yes. आपको जब कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला, एंड सोनी लिव पे हर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 8 बजे आने वाला है ये एपिसोड्स, तो आपको किस तरह से, हाउ डू यू हैव सॉ दिस कॉन्सेप्ट? नो, आई फेल्ट इट इज़ फैंटास्टिक बिकॉज व्हाट हैपेंस इज ना कि जो ये कॉन्सेप्ट है, मतलब ये कोर्ट रूम ड्रामा भी बोल सकते हो आप. अगर लोगों ने नेटफ्लिक्स पे सूट्स देखा होगा तो कहीं ना कहीं वो ये देख रहे होंगे. बट दिस इज राय सिंघानी वर्सेस राय सिंघानी इन द लिटरल सेंस. मतलब इसमें कोर्ट रूम ड्रामा तो है ही, लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स जो घर के राय सिंघानीज में है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड राय सिंघानी वर्सेस राय सिंघानी. लाइक हम एक प्लेटफॉर्म में, बड़ी बड़ी फैमिलीज़ में होता है ना कि लार्जर पिक्चर तो बहुत अच्छी होती है, हैप्पी, लेकिन जब वो एक्चुअल बिहाइंड द सीन जो होता है वो बहुत ही डिस्टर्बिंग होता है. सो आई थिंक ये वक्त रहते जब एपिसोड लोग देखेंगे उनको ये समझ में आएगा कि वाओ, इट इज़ एन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फैमिली ऑल्सो एंड कोर्ट रूम ऑल्सो. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. सो
सबसे ब्यूटीफुल आप ही लगे मुझे। Thank you. जो किरदार है एकदम लार्जर देन लाइफ। आप क्या कहना चाहोगे आपको जब पता चला अबाउट दिस फिल्म? सबसे पहले जब मैंने ऑडिशन ही दी ना, आई फेल इन लव विद दिस कैरेक्टर। मैंने पिछले 7 साल से एक्सेप्ट ससुराल गेंदा फूल का जो सीज़न 2 आया था, मैंने टेलीविज़न नहीं किया था और मेरा ये था कि मैं अब वेब सीरीज़ ही करूँगी या फिल्म ही करूँगी। तो मेड इन हेवन और गीली पुच्ची किया, लेकिन एक रनिंग वेब सीरीज़ जो लॉन्ग लास्टिंग है और जिसमें ये प्यारा सा किरदार मुझे लगा, जिसने टू सम एक्सटेंट मुझे अपना सा लगा। मैं भी ऐसी हूँ, मैं ऐसी ही दारू नहीं पीती इतनी, लेकिन ऐसी ही थोड़ी नखरेलू सी और हाँ, दिस इज़ मी, इट्स वेरी क्लोज टू मी दिस कैरेक्टर। बट इसमें शेड्स बहुत हैं, दैट्स व्हाट आई लाइक, यू नो, देयर यू गेट द स्कोप टू डू अ लॉट। ओके, पंच लाइन आपके काफ़ी अच्छी है, हमने देखी जहाँ पर आप आशिना के साथ जो पंच लाइन शादी को लेके ही थे, क्या कहना चाहिए इसको लेके? सो इसमें आपको हर एपिसोड में एक नई, मेरे हर सीन में एक नई पंच लाइन मिलेगी, क्योंकि दादी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने बहुत दुनिया देखी है। वो शायद स्विट्ज़रलैंड में यू नो पढ़ के आई है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उसने पढ़ा है, तो वो एक टाइम पे फिल्म स्टार्स को एलोक्यूशन सिखाती थी। तो वो एक बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर हैं जो आपको रोज़मर्रा की दादी में नहीं नज़र आएगा, इसीलिए लुक भी यू नो काफ़ी कुछ मेरे जैसी ही है। मैं भी एक नानी हूँ और मैं आई थिंक आई आइडेंटिफाई अ लॉट विद दिस कैरेक्टर। थैंक यू। थैंक